It's a great honor. ऑनर तो सर मेरा हो रहा है, अरे, क्योंकि it's a great. अलग व्यक्ति हूँ, अलग तरह का। आप लोग तो संस्कृत के विद्वान पंडित हैं, तो हालत तो मेरी खराब है इस समय। आप सबसे नहीं. सीखने की बड़ी इच्छा है, और विद्यार्थी होने का फल है कि कम से कम आपसे भी सीख लूंगा तो अच्छा ही रहेगा। अरे, great, sir. I mean, that's the, I mean, level of humbleness. Thank you. So kind of you, sir. So kind of you. It's, I mean, a technical person having interest, varied interest in Sanskrit, Samskriti, our Sampradaya culture. It's really great, sir. It's an honor to have you with us, sir. So I have enjoyed that actually, having worked with you in the forum. It's really a great experience, sir. Thank you, sir. Thank you for being with us, sir. We'll start the program within few minutes, sir, with your permission. Thank you. Bipin ji, I think the समयः जातः. वयं अतः इदानीं वयं इमं कार्यक्रमम् आरभामहे. तत्रादौ एकनिमेषः. योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वदाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्. अद्य संस्कृतदिनोत्सवस्य संस्कृत उत्सववासरस्य च आरम्भोऽयं कालः. यस्मिन् श्रवणमासे अथवा श्रावणमासे तत्रापि पवित्रारोपणद्वादशी. अद्य तु पवित्रारोपणद्वादशी. नमस्ते. नमस्ते सर. अद्य तु पवित्रारोपणद्वादशी इति कथ्यते. यस्मिन् दिने भगवते वयं दर्भैः पवित्रं कृत्वा भगवते समारोप्य तदनन्तरं वयमपि तत् धरामः. एवञ्च अस्मिन् पवित्रे दिने न केवलं दर्भरूपेण पवित्रस्य आरोपणं, किन्तु ज्ञानरूपेण अपि पवित्रतमस्य ज्ञानस्य आरोपणं भगवति भवितव्यम् इति कारणात् संस्कृत वासर उत्सवस्य प्रारम्भः इदानीं क्रियते. It's an honor to have great excellence like Professor Ambrish Vidyarthi ji and various other great scholars on this wonderful day. As I said, it's a Pavitra Ropana Dwadashi, which means we actually tie the Pavitra using Darbha and offer it to the holy feet of Lord, and then we actually wear it. Such a wonderful day this is. But instead of using Darbha, today we are using many flowers like great excellence and scholars like Vidyarthi ji and our Mantri Mahoday and various other scholars who are with us today. And many research scholars also have joined us. Therefore, I thought as we are starting with this Sanskrit week celebration, I started with Sanskrit conversation with you all to make it more clear the significance of this, and thereby motivate and encourage even the people who are interested in Samskrita and propagating Samskrita in one or the other way. I thought, let me also explain this in the conversational language that is through English. So welcome to all the great scholars, connoisseurs, research scholars, students, and various other Samskrita Mitrani to this wonderful Samskrita
Vasarotsavaha. To start with, let us have a Mangalacharanam, because Mangalikam Utsam, Mangalantani, Mangala Madhyani, Mangala Adini cha Karyani, Aishmat Purushakani Bhavanti. That's what Vedic scriptures say. Mangalacharanam in the beginning, Mangalacharanam in the middle, Mangalacharanam again at the end will always get you the ripe fruits or whatever is intended to, the objective which you have. Therefore, now I invite our beloved sister to offer Mangalacharanam and thereby give a very auspicious start to this Samskrita Vasarotsavaha. Tatradau Karyakramस्य प्रारंभे मंगलाचरणं करिष्यति अस्मद्भगिनी अर्चना महोदया. नमस्कार, मैं अर्चना झानू जानवी संस्कृत ई शोध पत्रिका लोकार्पण के अवसर पर मंगलाचरण में सरस्वती वंदना प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसके रचनाकार संस्कृत विदुषी डॉक्टर नवलता वर्मा जी हैं। वीणाधरे नमामस्त्वाम्, वीणाधरे नमामस्त्वाम्, वीणाधरे नमामस्त्वाम्, वीणाधरे नमामस्त्वाम्, हंसारूढे पंकजासने शतवारं प्रणमामस्त्वाम्, वीणाधरे नमामस्त्वाम्, वीणाधरे नमामस्त्वाम्, विद्यादायिनी बुद्धिप्रदायिनी, विद्यादायिनी बुद्धिप्रदायिनी, जड़ताहारणी दुख निवारणी, अक्षरूपिणी शुभ्र स्वरूपिणी, अक्षरूपिणी शुभ्र स्वरूपिणी, मनसा सदा स्मरामस्त्वाम्, वीणाधरे नमामस्त्वाम्, वीणाधरे नमामस्त्वाम्, तव पदरेणु शिरसा धृत्वा, तव पदरेणु शिरसा धृत्वा, लभ्यास्माभिवाणी सरसा, देहि धियं हे मात शारदे, देहि धियं हे मातु शारदे, भक्त जना उपयामस्त्वाम्, वीणाधरे नमामस्त्वाम्, वीणाधरे नमामस्त्वाम्, वीणाधरे नमामस्त्वाम्, वीणाधरे नमामस्त्वाम्, हंसारूढे पंकजासने शतवारं प्रणमामस्त्वाम्, वीणाधरे नमामस्त्वाम्, वीणाधरे नमामस्त्वाम्। धन्यवाद। महान संतोषः, महान संतोषः. It was a wonderful Mangalikam. Yatohi, why not using the prose? Why always people offer salutations using the Padyam itself?
for that अस्माकं कविः कालिदासः सङ्गीतसाहित्यकलाविहीनः साक्षात् पशुः पुच्छविषाणहीनः इत्यादि कालिदासादयः अनेके महान्तः सन्तः कथितवन्तः। सङ्गीतसाहित्यकला इत्यादि विहीनः यः पुरुषः वर्तते सः साक्षात् पशुरेव, पुच्छविषाणहीनः। So a person without horns and tails, how an animal would be same without music or interest towards our arts. What a wonderful Mangalikam tatra jatam bhaginya. Thank you very much Mahantah tatra pramodaha asmabhihi samarpyante. Evam idanim, now I call upon our own beloved friend, the organizer, the backbone, and the one who actually had this concept of organizing Sanskrit Week, World Sanskrit Week celebration, Samskrita, Vishwa Samskrita Vasarasya Acharanam Asmabhihi Sarvairapi Kartavyam. Let us all together celebrate this Sanskrit Week, World Sanskrit Week. That was the intention, and the initiation was done by our own beloved friend, the editor of Janhavi International Sanskrit e-journal, as well the Samskrita Bharati leader of this particular prant, Dr. Bipin Kumar Jha. Now I deem it a pleasure in inviting Dr. Bipin Kumar Jha to welcome the guests and gathering, as well to deliver the concept note of this World Sanskrit Week celebration. Tatra bhavantam bhavantam manmitram Dr. Bipin Kumar Jha varyam aham idanim swagatam karishe अस्मै कार्यक्रमाय अन्यान् स्वागतीकर्तुं. So they say, teach the teachers, train the trainers. So I welcome the one who welcomes others. So धन्यवाद Dr. महोदय। Bipin Kumar Jha ji, over to you. धन्यवाद महोदय। नमस्सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। अद्यारभ्य सप्ताहपर्यन्तं प्रचार्यमाने अस्मिन् कार्यक्रमे भवतीनां च स्वागतं व्याहरामः। अत्र अतिथीनां स्वागतनिमित्तम् अपि च औपचारिकपरिचयार्थं, यतोहि सर्वे परिचिताः एव सन्ति, तथापि औपचारिकपरिचयार्थम् अहम् अत्र नियुक्तः अस्मि। अत्र सर्वप्रथमं कार्यक्रमस्य उद्देश्य, संकल्पना तथा एतस्य परिपालनं कथं भवेत्, एतस्मिन् सन्दर्भे काचित् योजना आसीत्। तदाधारीकृत्य कथयितुं शक्यते यत् अयं कार्यक्रमः सम्बद्ध भारतीय भाषा तथा वैदेशिक भाषा तथा च संस्कृतस्य एतेषां मध्ये यः अंतरसंबंधः वर्तते तदाधारीकृत्य भविष्यगत योजनायाः मार्गं कथं शोधछात्राः प्राप्नुयुः एतस्मिन् सन्दर्भे एव चिन्तनम् अस्ति। अस्मात् पूर्वम् अत्र मम गुरवः सन्ति, तेषां मार्गदर्शने एकः कार्यक्रमः आयोजितः आसीत्। तत्र मूलरूपे शोधस्य संस्कृतक्षेत्रे शोधस्य परिकल्पना कथं भवेत्, केन प्रकारेण शोधस्य सम्यक् रूपेण परिपालनं भवेत्, एतस्मिन् सन्दर्भे चर्चा विमर्शः अभवत्। अत्र तस्मिन् सन्दर्भे एव एकः नूतनः प्रकल्पः वर्तते खलु, यत् अत्र केन प्रकारेण भाषा सन्दर्भित विमर्शो भवेत् इति। एतस्य आयोजनं संस्कृत भारती महेंद्रगढ़ जनपद तथा च महर्षि
पाणिनि वैदिक विश्वविद्यालयेन अपि च जाह्नवी पत्रिका माध्यमेन अत्र एतस्य कार्यक्रमस्य आयोजनं प्रचलति सम्प्रति। अत्र अस्मिन् कार्यक्रमे मुख्यरूपेण आहत्य 21 भाषाणाम् अत्र अन्वितिः वर्तते खलु। तत्र प्रामुख्येन 7 वैदेशिकभाषाः सन्ति, अपि च 14 भारतीयभाषाणाम् अत्र अन्वितिः चर्चाक्रमे भविष्यति। अत्र आहत्य 19+100 सहभागिनाम् अत्र प्रतिभागः वर्तते खलु। एतस्मिन् क्रमे एव अस्माकं मुख्यातिथिरूपे अद्य वर्तते, मुख्याभ्यागतरूपे वर्तते श्रीमान गोविंद सिंह ठाकुर महोदयः। एते शिक्षा मंत्रिणः सन्ति हिमाचल प्रदेश सर्वकारस्य। एतेषां परिचय संदर्भे संक्षेपेण एवमेव कथयितुं शक्यते यत् एते बाल्यकालादेव विविध नेतृत्वं निर्वहन्तः राष्ट्रहिताय कार्याणि कृतवन्तः। तत्र यत् मया प्राप्तं विवरणं तत्र बहु विस्तृतम् अस्ति। तत्र सम्यक् रूपेण संक्षेपेण एवं कथयितुं शक्यते, एते संस्कृत प्रियाः वर्तन्ते। संस्कृत माध्यमेन एव शपथग्रहणम् अपि एतैः कृतम्। एवमेव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यकर्ता रूपे बाल्यकालादेव एते सन्ति। नशा निवारण आंदोलनस्य नेतृत्वम् अपि च भ्रष्टाचार निरोधी राष्ट्रीय संघ मोर्चा समन्वयः प्रभृति अनेके तत्र महत्वाधायि पदानां प्लीज म्यूट योर माइक महत्वाधायि पदानां तत्र समावेशः अस्ति। अत्र सम्प्रति एते शिक्षा मंत्रिणः सन्ति। एतेषां संदर्भे एवं कथयितुं शक्यते, कालिदासः कथयति आकार सदृशः प्रज्ञः प्रज्ञया सदृशागमः आगमैः सदृशारम्भः आरम्भ सदृशोदयः। एषः एतस्य श्लोकस्य ग्रहणं मया तेषां यत्किमपि कार्यं वर्तते तत् कार्यं संवीक्ष्य एव एतस्य श्लोकस्य ग्रहणं मया एतस्य श्लोकस्य उदाहरणं मया दत्तम्। अत्र अतिरञ्जितं वचनं नास्ति। तत्रैव साक्षात् सारस्वतातिथिरूपे वर्तते प्रोफेसर अम्बरीश विद्यार्थी महाभागाः। ये महोदय नाम से ही विद्यार्थी हैं, वैसे ये कुलगुरु हैं। जैसे एक पूरा आश्रम को 5000 जो छात्र होते हैं उनको संचालन सहज रूप से जिस तरह किया जा सके, उनका भरण पोषण जिस तरह एक कुलगुरु करते हैं, उसी तरह ये बीकानेर तकनीक विश्वविद्यालय के कुलगुरु हैं ये। और आप हार्वर्ड बटलर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कानपुर से आपने स्नातक किया, उसके बाद केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ से आपने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। इसके साथ ही साथ, क्योंकि इनका विवरण जो है वह बहुत विस्तृत है और हमारे पास समय एक सीमा में है, इस कारण से मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा कि ये भारत के अतिरिक्त भिन्न भिन्न विदेशों में इन्होंने अनुसंधान या तो साक्षात रूप में किया या प्रकारांतर से अनुसंधान कार्य में संलग्न है, जिसमें कि मुख्य रूप से क्यूबेक विश्वविद्यालय कनाडा में इन्होंने जो कार्य किया, इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया, ट्यूनीसिया, इस तरह स्विनबर्ग अलग अलग विश्वविद्यालयों से संबद्ध होकर के इन्होंने कार्य किया। इनका जो अकादमिक योगदान अगर कहा जाए तो इनके मार्गदर्शन में 25 से अधिक विद्यावारिधि कर चुके हैं छात्र। साथ साथ लगभग 70 के आसपास, 70 के आसपास शोध कार्यों का इन्होंने पर्यवेक्षण किया है। और प्रकाशन की बात अगर की जाए तो 300 से अधिक प्रकाशन ऑन रिकॉर्ड हमें प्राप्त होता है। तो वास्तव में कुलगुरु ही हैं, तो इनके संदर्भ में अधिक हम
क्या कहें, ये हम एक शिशुपाल वध का एक श्लोक उद्धृत करना चाहते हैं इनके संदर्भ में। हालांकि वहां पर भगवान कृष्ण का वचन है नारद, महर्षि नारद के संदर्भ में, क्योंकि हरत्यघम संप्रति हेतु रेष्यतः शुभस्य पूर्वाचरितैः कृतं शुभैः शरीर भाजाम भवदीय दर्शनम व्यनक्ति काल तृतयेपि योग्यताम। हालांकि वहां पर महर्षि नारद के लिए कहा गया, अगर हम ऐहिक पाप पुण्य की बात करें, ऐहिक पुण्य की बात अगर करते हैं हम, तो महोदय के दर्शन मात्र से ये त्रैकालिक जो पुण्य है वो हमें प्राप्त होता है। इसके साथ ही साथ अस्माकं समक्षम वर्तते श्री शोभनलाल उकील महाभागाः। एते संस्कृत भारत्याः अवध प्रान्तस्य अध्यक्षाः भवन्ति। अद्य बेंगाली अपि च संस्कृत भाषा संदर्भे एते विमर्शं प्रस्तोष्यन्ति। एवमेव अत्र ये श्रोतारः सन्ति, अपि च ये कार्यकर्तारः सन्ति, प्रायशः मासाभ्यन्तरे एतादृशः कार्यक्रमः आयोजितः अस्माभिः। तत्र ये कार्यकर्तारः सन्ति, मुख्यरूपे मदन मोहन तिवारी महाभागाः सन्ति, अत्र शिल्पी वर्तते, अपि च रजनी वर्तते। एतेषां सहयोगेन एव अत्र कार्यं भवति। अत्र मार्गदर्शक रूपे तो सुमन महाभागाः सन्ति एव। अत्र ये श्रोतारः सन्ति, प्रामुख्येन गुरुजनाः सन्ति। अत्र ये केचन, तेषां कृते अहं साकल्येन स्वागतं वच्मि, यतोहि कालातिक्रमणं जायते। अत्र ये केचन मम गुरवः सन्ति, अपि च ये अग्रजाः सन्ति, ये अनुजाः सन्ति, तासां सर्वेषां कृते हार्दं स्वागतं, प्रीति प्रमुख वचनं स्वागतं। यथा सः यक्षः स्वागतं व्याहरति तद्वदेव, यतोहि सोऽपि पिपासितः वर्तते, वयमपि पिपासिताः। यतोहि अत्र यदि दर्शकाः न भवन्ति, यदि श्रोतारः न भवन्ति, तर्हि एतद् आयोजनं किमर्थम्? एतस्मात् कारणात् अत्र प्रीति प्रमुखवचनेन अत्र स्वागतम् अहं हार्दं स्वागतं व्याहरामि। धन्यवादाः, नमांसि। धन्यवादाः। महान् सन्तोषः बिपिन महोदय, यत् भवान् अल्पेनैव कालेन महत् कार्यं कृतवान्। अत एव हनुमान् अब्धिमतरत् दुष्करं किं महात्मनाम् इतिवत् भवान् अपि हनुमान् अस्ति, अब्धिमेव भवान् अतरत् तादृशकार्यं कृतवान् इति कारणात् महते मोदाय अस्माकं सर्वेषां धन्यवादाः। इदानीं यथा अम्बरीश महाभागाः समागताः, तथा अन्येपि संस्कृतभारत्याः प्रान्तप्रमुखमहाभागाः, अन्ये विद्वांसः समागताः। तान् सर्वान् पुनरेकवारं स्वागतीकृत्य इदानीं तत्र भगिनी शिल्पी अस्माकं जाह्नवी या पत्रिका वर्तते, तस्याः पत्रिकायाः 47तम 48तम एतयोरङ्कयोः इदानीं तत्र मन्त्रिमहाभागैः अनयोः अङ्कयोः उद्घाटनं सञ्जातं। यच्च पठित्वा, याञ्च पत्रिकां पठित्वा वयं सर्वेपि हर्षनिर्भराः अवश्यं भवेम इति सम्पादक मंडली परितः अहं वक्तुम् इच्छामि। नौ वी हैव आवर ओन beloved patrika, that is journal, e-journal, the first of its kind, international peer reviewed, blind peer reviewed international e-Sanskrit journal, which is about to reach, get into the care list very soon, because we have very great people like Dr. Srinivas Varkhedi ji, Dr. Murali Manohar Pathak ji, and many other great Sanskrit scholars under the leadership of Dr. Ramanand Jha ji. We are actually
so far have brought 46 editions. This is Traimasiki Patrika, once in 3 months. So quarterly magazine, this is e-Sanskrit journal, first of its kind since 2009, when there was nothing called as Carelist or anything. Since then, we have been doing this blind, peer-reviewed, journal, which is being, distributed to very great, the assembly of great scholars. So therefore, now the 47th and 48th edition of this, since 2009, we have been doing it, and now it is the 47th and 48th edition of Janhavi International Sanskrit Blind Peer Reviewed e-Journal, which was very shortly, actually, Mantri Mahoday actually released this due to his lot of, many other official work. Shriman Govinda Simha Thakur ji, who is the education minister, just now, within probably within 60 minutes, within last 60 minutes before he actually released this, he was supposed to come here, but due to his work pressure, he was not able to join us now. But he is the one who actually took oath even in Sanskrit. So in the assembly, the person who took oath in Sanskrit and who is always standing as a backbone of Sanskrit and promoting it, that great minister released our 47th and 48th edition of Janhavi Sanskrit e-Journal, which is going to be now showcased before the all August audience. Before that, let me call upon Sister Shilpi to actually present the actual content of this 47th, 48th edition of Janhavi Sanskrit e-Journal before the August audience, the connoisseurs. Over to Shilpi. Thank you, sir. I think Shilpi, you are going Yes, to sir. make presentation. Yeah, please. सर्वेभ्य नमो नमः। मेरा नाम शिल्पी गुप्ता है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ। आज मैं जानवी संस्कृत ई जनरल के 48वें अंक के लोकार्पण पर पत्रिका का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कर रही हूँ। जानवी संस्कृत ई जनरल के उद्देश्य रहे हैं संस्कृत से रिलेटेड नॉलेज को इंटरनेट पर ऑर्गेनाइज्ड वे में सामान्य जन को सरलता से उपलब्ध कराना, संस्कृत क्षेत्र में हो रहे इनोवेटिव रिसर्च और आइडियाज को टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्थापित किया, वैज्ञानिक वैभव को इंटरनेट के माध्यम से विश्वमान सपटल पर लाने हेतु प्रयास करना। इसके पश्चात में संस्कृत कार्यों का जो विकास क्रम रहा है उससे परिचित कराती हूँ। सभी कार्यों को यहाँ बता पाना संभव नहीं है, इसलिए मैं कुछ ही जो विशेष कार्य है उनकी चर्चा करूंगी। जैसे कि 2007 में प्रथम संस्कृत दृश्य श्रव्य ब्लॉग्स की शुरुआत की गई। इसके अतिरिक्त 2008 में YouTube के ट्यूटोरियल्स की शुरुआत की गई। 2010 में विश्व के प्रथम संस्कृत ई जनरल की शुरुआत की गई। 11 अप्रैल 2020 को विश्व के प्रथम संस्कृत वेबिनार की शुरुआत की गई, जिसकी पूर्णता रिकॉर्डिंग वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप लोग उसको विजिट कर सकते हैं। लोकार्पण में कुल 48 अंक हैं। प्रस्तुत पत्रिका का लोकार्पण भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी होता रहा है, जैसे कि अटलांटा यूएसए में, नॉर्थ डार्टमाउथ में, श्रीलंका इत्यादि में। पत्रिका के माध्यम से लेखों की संख्या 654 के आसपास रही है तथा लेखकों की संख्या 450 के आसपास रही है। YouTube चैनल के विषय में अगर मैं बात करूं तो 3 जून 2008 से अब तक व्यूज की संख्या 5 लाख से अधिक, इंप्रेशन 46 लाख से अधिक, व्यू आवर्स 30,000 से अधिक तक रहे हैं। कंट्री वाइज व्यूअर्स की बात करें तो इंडिया के अलावा यूनाइटेड स्टेट, नेपाल, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, कनाडा, श्रीलंका, ओमान, ब्राजील इत्यादि अदर कंट्रीज से भी व्यूअर्स हमारे रहे हैं। अगर हम YouTube चैनल पे उपलब्ध कंटेंट की बात करें तो दर्शन, साहित्य, वेद, वेदांग, ज्योतिष सभी प्रकार के सभी विषयों के हमें
रिलेटेड वीडियोस हमको चैनल पर देखने के लिए मिलती हैं। पत्रिका द्वारा सदैवी छात्रों की मदद के लिए सराहनीय प्रयास किए गए हैं, जैसे कि यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे छात्रों के अनेक क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट किए गए हैं। विदेशी छात्रों के लिए अंडरस्टैंडिंग संस्कृत नामक पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई है। इनके साथ 237 छात्र 41 अलग अलग देशों से जुड़े हुए हैं। पत्रिका द्वारा 6 डेज इंटरनेशनल सेमिनार का भी आयोजन किया गया था, जिसका उद्देश्य रहा क्वालिटी रिसर्च इन संस्कृत बुद्धिस्ट टेक्स्ट पर भी पत्रिका द्वारा वर्कशॉप का आयोजन किया गया था, जिसमें 139 पार्टिसिपेंट्स रहे 12 अलग अलग कंट्रीज से। इस तरह समय की सीमा में रहकर मैंने संस्कृत जानवी ई जनरल का एक छोटा सा परिचय आप सभी को देने का प्रयास किया है। धन्यवाद। धन्यवादाः शिल्पी महाभागायै। प्रस्तुते अस्मिन् अल्पीयसि काले एव अस्मज्जाह्नव्याः विशेषपरिचयं कारितवती। तस्यै पौनःपुन्येन अहं कार्तज्ञं समर्पयामि। Thank you very much, Ms. Shilpi. Now, I would like to request on this platform our own Honorable Vice Chancellor of Bikaner Technical University, Professor Ambarish Vidyarthi ji. See, today it is Dwadashi. There is a special connection between Dwadashi and Ambarisha. If you go through Bhagavatam, the Dwadashi Tithi became very famous because of Ambarisha Maharaj. There was a Maharaj called Ambarish who made Dwadashi famous. Not because of Dwadashi he was famous. Dwadashi was made famous because of that Ambarisha Maharaj, that Ekadashi Upavas he did, and on Dwadashi when he was supposed to do Paranam, that is when he was supposed to close his fasting, then there came Durvasa Maharshi, and what happened we know that, and Durvasa Maharshi wanted to stop his, wanted to become an obstacle in the Dwadashi Paranam. Then somehow he was such a great Vishnu Bhakta that nobody could help him, and he couldn't stop Ambarisha from succeeding in Ekadashi Vratam. So when that Ambarisha Maharaja succeeded and made this Dwadashi to succeed, I think this Dwadashi will be very memorable even for us with this great Maharaj Ambarish ji, who is such a great supporter of Samskriti, and because I have listened to him, I have heard him speaking, and such a great knowledgeable person, not just by going through his profile or his resume, but I have heard him, I have experienced him. So therefore, now may I request Professor Ambarish Vidyarthi ji that let him also pass on his Vidyarthitva to all of us, and thereby make us all the permanent Vidyarthis of Samskrita language, and thereby contribute towards the nation building. Over to Professor Ambarish Vidyarthi ji, and a small request as well, apologies that we are running short of time. Hence, actually we would like to listen to Ambarish Vidyarthi ji for more time, but due to lack of time, as a responsible editorial committee member of Janhavi, it is my responsibility to see to it that the start and end happens within the scheduled time. Therefore, may I request Dr. Ambarish Vidyarthi ji to bless us within some 8 to 10 minutes. Dhanyawadaha. Over to Professor Ambarish Vidyarthi ji. धन्यवाद प्रोफेसर सुमन विपिन झा for such a wonderful महिमा मंडित करने का आपने जो ये कुत्सित प्रयास किया है। मैं शब्द गलत यूज कर रहा हूँ क्योंकि विद्यार्थी को विद्यार्थी ही रहने दीजिए। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है, ईश्वर की कृपा है कि मैं थोड़ा बहुत कुछ कर पाया या मुझसे ईश्वर ने कुछ कराया।
तो इसमें मेरी महिमा कुछ नहीं है, ये सब बड़ों का आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा है। संस्कृत का ये मेरा उतना अच्छा सौभाग्य नहीं रहा, ईश्वर ने मुझे ब्लेस नहीं किया कि मैं संस्कृत का एक विद्वान होता, जो कि मेरे अंदर हार्दिक इच्छा है कि मैं इसका एक स्कॉलर बनता और बनूं। भविष्य में भी कोशिश मेरी है, परंतु तकनीकी ज्ञान के इस बवंडर में पहुंचकर यह थोड़ा सा मुश्किल सा ही लगता है, परंतु बड़े लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो शायद मैं ये कुछ कर सकूंगा। लेकिन इतना भी दुर्भाग्यशाली नहीं हूँ, क्योंकि ईश्वर ने मुझे पत्नी के रूप में एक विद्वान पंडित, जिसने कि वेदों में कार्य PhD की है, तो ये मेरा सौभाग्य है कि कुछ थोड़े बहुत चीज़ें कानों में आती रहती हैं। मैं कोशिश करता हूँ उन्हीं के थोड़ा सा मैंने लिखवाया था, कोशिश ये थी कि जो है संस्कृत में ही कुछ बात करूं, तो इसके लिए त्रुटि होना स्वाभाविक है और आप विद्वज्जन मुझे इसके लिए क्षमा करेंगे। महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय संस्कृत भारती जाह्नवीत शोध पत्रिकाणां संयुक्त तत्वावधाने समायोज्यते विश्व प्रतिनिधि भाषासु संस्कृत वैभवम नामे विश्व संस्कृत सप्ताह पर्वाणि आयोजने मुख्य अभ्यागतः श्री गोविंद सिंह ठाकुर, माननीय शिक्षा भाषा कला एवं संस्कृत मंत्री हिमाचल प्रदेश। सारस्वत अतिथि श्री शोभन लाल उकील जी, प्रांत अध्यक्ष अवध प्रांत, जहाँ से कि मैं आता हूँ। संस्कृत भारती संरक्षक प्रोफेसर श्री विजय कुमार CG, माननीय कुलपति महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय, समन्वयकः विपिन कुमार झा, संचालकः डॉक्टर सुमन, संयोजिका डॉक्टर सरिता श्रीवास्तव, अन्यान्यपि बंधु बांधव भ्राता भगिनी, शुभ संस्कृत दिवसः। संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनस्य भाषा अस्ति। संस्कृतस्य वाक् भारती, शुर भारती, अमर भारती, शुरवाणी, देववाणी, देवभाषा इत्यादि भी नामाभि प्रसिद्धा। समस्तापि प्राचीन साहित्यम ऋग्वेदादि वैदिक साहित्यम रामायणम महाभारत पुराणादि दर्शन ग्रंथा स्मृति ग्रंथा काव्यानि नाटकानि आख्यान अस्यामेव भाषेण लिखिता प्राप्यन्ते। गणितम ज्योतिषम काव्यशास्त्रम आयुर्वेद अर्थशास्त्र नीतिशास्त्र राजनीतिशास्त्रम छंदशास्त्रम ज्ञान विज्ञानम तत्वज्ञानम अस्यामेव संस्कृत भाषायां समुल्लम्यते। न केवलं धर्म अर्थ काम मोक्षात्मकः चतुर्विध पुरुषार्थ हेतुभूता विषयाः अस्या सत्या साहित्यस्य शोभान वर्धयन्ति, अपितु धार्मिक नैतिक आध्यात्मिक वैज्ञानिक लौकिक पारलौकिक विषये अति सुसंपन्ना इयं देववाणी। संस्कृतं सर्वा भारतीय भाषा सर्वजन्म जनमानसम एक सूत्रेण संयोजयति। संस्कृत भाषा एका वैज्ञानिकी भाषा अस्ति, नास्त्र अत्र को अपि न संशयः। वैदिक काले संस्कृत भाषा व्यवहार रूपेण आसीत्। संस्कृत भाषा वैज्ञानिकता यावत् प्राचीन काले आसीत् तावत् आधुनिक युगे अपि अस्ति। वैदिक काले संस्कृत भाषायां न केवलं शिक्षणं भवति, अपितु चिकित्सा खगोल दर्शन आयुर्वेद धनुर्वेदः ज्योतिषं व्याकरणम् इत्यादयः इत अतिरिक्त कर्मकाण्डम् अपि
संस्कृतभाषायां भवति स्म। वयं जानीये अस्माकं भारतदेशे विश्वगुरुः आसीत्। कालान्तरम् अस्माकं देशे अनेका आक्रमणा अभवत्। भारते मुगलानाम् आङ्ग्लशासकानाम् अधिकाराः बभूव। येन कारणेन अस्माकं देशे अनेकानि विकृतानि यथा देशस्य संस्कृत साहित्य शिक्षा पद्धति च प्रभावितः अभवत्। अस्माकं संस्कृत भाषा केवलं कर्मकाण्डं पर्यन्तम् एव सीमित अस्ति। अस्या भाषा वैज्ञानिकः का इत्यस्मिन् विषये वयं विस्मृतवन्तः। अतः हमें इस पर रिसर्च करनी चाहिए। आधुनिके समये भाषया एतादृशा व्यापकमे युक्तं विवेचनं भवति यदस्या स्वरूपं वैज्ञानिक अध्ययनस्य कोट्यामागमत्। भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्तः, श्रीधरः, महावीर, श्रीपति अस्य शास्त्रस्य प्रमुखाः आचार्याः आसन्। संस्कृत भाषा वैज्ञानिक महत्त्वं प्राचीने ऋषिभिः मुनिभिः पंडितैश्च मानवः जीवनं सुखमयं विधातु स्यानुमोदेन स्वः तपः शक्त्या च सम्पादितं कार्यं बहुविधं विज्ञानं संस्कृत भाषायां रचितं वर्तते। मानवानां स्वाध्यायां तेषां स्वास्थ्याय संरक्षणाय आयुर्वर्धनाय रोगाणां निवारणाय च आयुर्वेदः तराम् उपकारकः भवति। गृह निर्माणाय, भवन निर्माणाय, दुर्ग निर्माणाय वास्तुशास्त्रे शास्त्रं, यज्ञादि संपादनाय च विवाह अवसरे शुभ कार्याणां अनुष्ठानां मानवस्य भूत भविष्यति वर्तमानां ज्ञानाय च ज्योतिषं शास्त्रं मानवस्य कुलमं व्यक्तित्व निर्माणं संस्काराणां च प्रतिपादाय धर्मशास्त्रम् अर्थव्यवस्थां संरक्षेण प्रजानानां हितस्य परिरक्षणाय अर्थशास्त्रम् इत्यादीनि अनेक शास्त्राणि संस्कृते रचितानि लभ्यते। संस्कृते ज्ञानस्य सर्वाः विधाः समुपलब्धाः सन्ति इति वैदेशिकाः विद्वांसाः अपि स्वीकुर्वन्ति। अस्माकं परम कर्तव्यम् अस्ति यद् भारतीय संस्कृतः रक्षणाय भारतस्य प्रतिष्ठायां स्थापनाय च संस्कृत भाषाय अध्ययनम् अध्यापनं च नितराम् अस्माभिः कर्तव्यम्। अमृतं संस्कृतं मित्र सरसं सरलं वचः एकतामूलकं राष्ट्रे ज्ञान विज्ञान पोषकम्। जयतु देववाणी संस्कृतं, जयतु भारतवर्षम्। वेरी ग्रेट सर, महान संतोषः। विद्यार्थी महोदयस्तु संस्कृत विषये यद्यपि वयं ह्यः वा दिनद्वयात् पूर्वमेव तत्र महोदयाय अम्बरीश महोदयाय उक्तवन्तः एतत् कार्यं क्रियते तत्र भवता आगन्तव्यम् इति। किन्तु दिनद्वयाभ्यन्तरे एव स्वयमेव संस्कृतमाध्यमेनैव संस्कृतस्य महत्तां तत्र सिद्धीकृत्य अयं महोदयः अस्माकं कृते इदानीं प्रदत्तवान् वर्तते, येन वयं सर्वेपि पुनीताः हृष्टाः इति वक्तुमहं मोमुदे। Thank you very much for that wonderful, what do you say, like Sanskrit. It was not just a speech, but I feel that what your heart felt, so you have expressed it. It's a great thing, sir, that within 2 days, only 2 days before we had told you, and we know that, as you said, that you are not a, but you are a Vidyarthi. Don't say that you are not a Sanskrit, learner. You are, of course, you have learned so many things and you have been expressing it before us.
Thank you very much for being with us and sharing your thoughts with us in Samskrita, about Samskrita. And one thing I would like to reveal before this august audience, that Dr. Amrish Vidyarthi ji, being the Vice Chancellor of Bikaner Technical University, he has brought in a paper in each and every semester for engineering students for about 6 to 8 semesters from this year onwards in all the technical colleges coming under Bikaner Technical University. I believe there are more than 150 to 200 colleges, engineering colleges all over Rajasthan coming under Bikaner Technical University. Have you heard of technical university adopting our knowledge system, that is Indian knowledge system, in each and every semester? Forget about having it in every semester. Even one semester, if we, if somebody is really intended to do, they find it very difficult. Vice chancellors find it difficult. But here we have such a great, powerful person who is not powerful influence-wise, but a powerful person by his determination and dedication, because of which he has brought in all the Sanskrit scholars together, and he had made it a compulsory paper for each and every technical student to understand the Indian knowledge system. Not just technical things, but technologically how strong Sanskrit is, and how it is useful for each and every Bharatiya to make that to be coming to be experienced by each and every student. He has brought in a paper in each and every semester, for which I think he is to be applauded again and again by we all Samskritists, and in hope this will continue for many years together, and further Sanskrit people who are studying engineering should start doing research in Sanskrit and engineering, a comparative study. So that should be our next goal. Thank you very much, Professor Amrish Vidyarthi ji, for being with us on this great day of Sanskrit Week celebration. Dhanyawadaha. Tatra bhavate mahodayaya Amrish mahodayaya. Idanim tatra अस्माकं मध्ये वर्तते, तत्र सारस्वत अतिथ्यनन्तरं मुख्यातिथि महोदयः श्रीमान् गोविन्दसिंह ठाकुर महोदयः तत्र आगन्तव्यः आसीत्, किन्तु कार्यान्तरात् पूर्वमेव यथा उक्तं तथा न स आगच्छति, किन्तु तथापि अस्माकं विपिन कुमार महोदयः अग्रिमकार्यक्रमस्य विवरणं तत्र भवद्भ्यो दास्यति. Now we are going to present that video in which we can find our Honorable Minister releasing the 47th and 48th edition of Janhavi International Sanskrit e-Journal. Over to Dr. Bipin Kumar Jha for presentation. Jhaji, do you have the audio also there connected with it? Or it is not there? No issues. Chinta nasti. I request all the connoisseurs, Jijnasus, to join hands with us by submitting research papers and even reading this Janhavi and giving your positive and the sincere, not just positive, sincere reflections, so that we can be very constructive in receiving your suggestions and how to build this Sanskrit e-journal. Thank you very much, all the audience, for being with us. So please do give your suggestions in future, so that we want to make Sanskrit e-journal Janhavi as the topmost journal, which is not seeing, we do not see the names at all. Well, that's what I said, blind peer reviewed journal this is. So whether it might be even a person, one among the editorial, he might submit a paper, still it will be sent to somebody else without the name. So this is how we have been doing it. Thank you very much. We need even Professor Amrish Vidyarthi ji to suggest us and be one amongst the advisors
and so that because with your lot of experience poured in will help us develop this e-Sanskrit journal to a greater extent. आपके नाम पे Yeah. जो आपका नाम हाईलाइट है बोल्ड, यहाँ पे क्लिक करना आपने और लोकार्पण हो जाएगा नीचे नाम के ऊपर। जी सर। Yes, the journal is released. Probably even now, if people could check Janhavi SanskritEjournal.com, they'll be able to read the content. There are more than 15 to 16 articles. And let me tell you that Iyam Patrika, Tatra Bhavata Mahata, Dr. Ramananda Jha Mahabhagena, the great scholar, Dr. Ramananda Jha, who is the backbone of this Janhavi Sanskrit e-journal. He is the principal of Lagma Adarsha Shodha Samsthan, which comes under Central Sanskrit University. And he is none other than even the great father of Dr. Bipin Kumar Jha. And he has brought his son also in the same way, and he's been training him. And now Dr. Bipin Jha ji has taken up this, and since 14 years, we are together trying to give something best from the Sanskrit literature to all the researchers and receiving lot from Sanskrit researchers. Over to Dr. Bipin Kumar Jha ji. Thank you very much, Professor Amrish Vidyarthi ji. धन्यवादाः। एतदनन्तरं उकिलमहाभागाः सन्ति, साक्षात् अग्रेसरामः। सुमन महोदय। आमामाम्। उकिल महोदयाः सन्ति। उकिल महोदयेभ्यः ये संस्कृत भारत्याः प्रचारे प्रसारे सर्वदा कटिबद्धाः सन्ति। अत्र उत्तरप्रान्ते यदि संस्कृतं जनमनस्सु विशेषतया निगूढं वर्तते चेत् तस्य कारणं तत्र भवान् उकिल महोदयः वर्तते। स च इदानीं संस्कृतस्य अभिवर्धनं इतोप्यतिशयेन कथं वा कर्तव्यं, कथं क्रियमाणं वर्तते इत्यादि विषये अस्मान् उद्दिश्य इदानीं भाषते। तं महोदयम् अहं प्रार्थयामि स्ववक्तव्यं अस्मत्पुरतः तत्र निक्षिपत्विति सवन्दनम् अहं प्रार्थये। नमो नमः सर्वेभ्यो। बहुशः धन्यवादाः यतः मह्यम् अयम् अवसरः प्रदत्तः अत्र वार्तां कर्तुम्। इदानीं यथा मम परिचयः प्रदत्तः, समयस्य अपि अभावः वर्तते, अतः बहु अधिकं न वदामि। प्रोफेसर् अम्बरीश् महोदयस्य उद्बोधनं मया श्रुतं। एषः महोदयः टेक्निकल् यूनिवर्सिटी इति संस्थायाः प्रमुखः। अहमपि एकः अभियन्ता अस्मि, इंजीनियर् अस्मि। अत्र काशी हिन्दू विश्वविद्यालयतः विद्युत् अभियन्त्रणम्, इलेक्ट्रिकल् इंजीनियरिंग तत्र उत्तीर्णं कृत्वा बीटेक् इति प्राप्य अत्र विद्युत् परिषदि अहं सेवां कृतवान् 30 वर्षेभ्यः। तस्मिन् समये एव अष्टाध्यायी आधारेण संस्कृतस्य अध्ययनं कृत्वा अनन्तरं संस्कृत प्रचाराय आगतवान्। यदा अहम् अत्र सेवायां विद्युत् परिषदि सेवायाम् आगतः, तस्मिन् समये मया अनुभूतः इति इंजीनियरिंग तो मम वृत्तिः, तत्र जीविका अस्ति, किन्तु यदि संस्कृतं न जानामि तर्हि जीवनम् अपूर्णम्। अतः संस्कृत अध्ययनम् आरब्धम्। अनन्तरं चिन्तितवान् यद् मया अधीतं समाजे न ददामि चेत् तर्हि को लाभः। अतः संस्कृत प्रचाराय आगतम्। इदानीं संस्कृत भारत्याः अवध प्रान्तस्य अध्यक्षत्वेन दायित्वं निर्वहामि। किञ्चित्
मह्यं मम मातृभाषा वङ्गभाषा अस्ति। अतः पूर्वं यथा वार्ता जाता आसीत्, वङ्गभाषा संस्कृतभाषायाः द्वयोर्मध्ये किं तत्र वङ्गदेशे प्रदेशे तत्र संस्कृतस्य प्रचार प्रसाराय वङ्गभाषायाः संस्कृतेन सह कीदृशः सम्बन्धः इति विषये किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। सर्वाः भाषा अस्माकं देशस्य ते संस्कृत आधारिताः सन्ति। संस्कृतमेव तेषां माता, यतः सर्वत्र संस्कृतस्य यत् अस्ति वर्णमाला तदेव अनुसृता भवति। वङ्गदेशे अपि संस्कृतस्य शब्दाः यथावत् प्रयोगः भवति शब्दानां, केवल उच्चारणस्य भेदः। इतः परं किञ्चित् हिन्दीभाषायां वदामि, यतः तेन शब्दानां तत्र कीदृशाः शब्दाः सन्ति ये संस्कृतस्य अनुगुणं भवति। बांग्ला भाषा में संस्कृत के शब्द बड़ी संख्या में है, जो कि प्रायः अपने मूल स्वरूप में ही व्यवहृत होते हैं, केवल उच्चारण का अंतर है। कहीं कहीं कुछ परिवर्तन भी है। ऐसे कुछ शब्द मैं बताता हूँ। जैसे चक्षु, उसको बांग्ला में कहते हैं चोख। जलम को जल, किंतु उसका उच्चारण होता है जौल। इसलिए जो बांग्ला नहीं जानता उसके लिए उसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। फलम को फल, आकाश को आकाश, ऐसे यथावत उच्चारण। समुद्र को समुद्र, किंतु स जो संस्कृत में 3 प्रकार के स है, दंतस्य, तालव्य, मूर्धन्य, वहां भी है, परंतु उच्चारण में सब तालव्य जैसा ही होता है। जैसे समुद्र कहते हैं समुद्र, ऐसे उच्चारण करें। संस्कृत में हम जिसको समुद्र कहते हैं, बंगाल में उसको कहेंगे समुद्र, है वही शब्द, केवल उच्चारण भेद है। फिर कुछ शब्द तो बिल्कुल यथावत है, जैसे अन्य मनस्क, उसको बंगाल में कहते हैं अन्न मनुष्य, अन्य मना, आन मना, ऐसे बहुत से ढेरों शब्द हैं। तो संस्कृत के बिना भारत की कोई भी भाषा अग्रगति नहीं कर सकती। उसको आगे बढ़ने के लिए, अपना शब्द भंडार बढ़ाने के लिए संस्कृत भाषा में ही आना पड़ता है। संस्कृत में नए नए शब्दों को उत्पादन करने की, बनाने की एक अद्भुत शक्ति है। जो भी संस्कृत का अध्ययन किए हैं और व्याकरण जानते हैं वो इस बात को समझते हैं। अब किंतु बंगाल में संस्कृत में बहुत कार्य हुआ है। इससे पिछली 19वीं शताब्दी में जो 2 बृहत शब्दकोशों का निर्माण हुआ है, एक वाचस्पत्यम और दूसरा शब्दकल्पद्रुम, दोनों ही बंगाल में बने हैं। तारानाथ तर्क वाचस्पति पंडित, उन्होंने 1884 के 86 के आसपास तर्क वाचस्पत्यम 6 खंडों में उन्होंने उसको प्रकाशित किया था। बहुत बृहद शब्दकोश है। उसी प्रकार बंगाल के, उत्तरी बंगाल के कूच बिहार के राजा के 9 सभा पंडितों ने मिलकर के शब्द कल्पद्रुम की रचना की थी। ये दोनों बड़े प्रामाणिक शब्दकोश संस्कृत के उपलब्ध होते हैं। परंतु उस समय जो टाइप सेटिंग थी, जो देवनागरी लिपि की उस टाइप सेटिंग, वो जो छापा गया, आज इतने वर्षों बाद, 125 वर्ष हो गए, वही टाइप सेटिंग, उसी की फोटोस्टेट कर करके वो पुस्तकें छाप करके उपलब्ध कराई जाती हैं। चाहे राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान वाले निकालें या दूसरे निकालें। मैंने कई बार विद्वानों से बात की, क्यों नहीं आप आज इतने वर्षों बाद जब संस्कृत का हम लोग इतना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो एक बृहद शब्दकोश को, उसको एक नया स्वरूप दें, इसमें थोड़ा रिसर्च करें और इसमें नए शब्दों का समावेश करते हुए, आजकल कंप्यूटर की व्यवस्था है और जो अच्छे प्रकार से इसको नया कलेवर दें, पर कोई साहस ही नहीं जुटा था।
सब कहते हैं इसको प्रूफ कौन पढ़ेगा, पर हमारे देश में विद्वानों की कमी नहीं। इतने सारे राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थान है, इतने बड़े बड़े विद्यालय हैं, इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, पर इच्छा शक्ति होनी चाहिए करने का। वह एक इच्छा होनी चाहिए कि इसको करना है। तो यह एक बहुत बड़ा कार्य है जो हम लोग को करना चाहिए। और यह संस्कृत के जो अध्येता हैं उनके लिए अत्यंत उपयोगी होगा, क्योंकि मैंने जब संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया तो मुझे इसमें जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मैं तो एक इंजीनियर था, मैंने संस्कृत, मेरे जो वृत्ति है उसमें संस्कृत का कोई उपयोग नहीं है। तो जब संस्कृत का अध्ययन करना शुरू किया और शब्दकोश देखा तो मुझे बहुत कठिनाइयाँ। तो इसीलिए ये सब चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि जो संस्कृत, जिनकी वृत्ति है, जिनकी जीविका है, उनको इसमें अधिक ध्यान देना चाहिए कि जो संस्कृतेतर लोग हैं, जो संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, उनको उसको कठिनाई ना हो। बहुत कठिनाई से मैं आगे बढ़ पाया। जिन कठिनाई का मुझे सामना करना पड़ा वह आप कल्पना नहीं कर सकते। और उसका कारण यही है कि इसमें यद्यपि हमारे पास विद्वानों की कमी नहीं, पुस्तकों ग्रंथों की कमी नहीं, पर उस पर आधुनिक तरीके से उस पर कार्य नहीं, उस पर हमें सोचना चाहिए और कार्य करना चाहिए। एक बहुत बड़ा एक आयाम है जिसमें हमें काम करना चाहिए। प्राचीन काल में बंगाल में जब बौद्ध मत का प्रादुर्भाव हुआ तब धीरे धीरे तंत्र शास्त्रों का उदय हुआ, तांत्रिक मत का वहां पर अधिक प्रचार। शंकराचार्य के आगमन के बाद धीरे धीरे तंत्र मत, वो तंत्र शास्त्र इतना अधिक वहाँ था कि आज भी बंगाल में जो शक्ति पूजा, काली की पूजा होती है, वो सब तंत्र आधारित है। परंतु तंत्र शास्त्र को श्री शंकराचार्य ने मान्यता नहीं दी, इसीलिए उसका कोई उस प्रकार से अध्ययन नहीं होता जिस प्रकार से वेदों का या दूसरे शास्त्रों का होता है। परंतु जब शंकराचार्य का आगमन हुआ, उन्होंने धीरे धीरे वहाँ पर वेदों का स्थापना की। उस समय ये स्थिति हो गई थी कि बंगाल में लोग वेदों का नाम तक भूल गए थे, वेदों का नाम नहीं जानते। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा बहुत कार्य हुआ। न्याय शास्त्र पर काफी वहाँ अध्ययन हुआ। जो बंगाल में संस्कृत के विद्यालय होते थे उन्हें टोल कहते थे। नदिया जिला वो विख्यात था, चैतन्य महाप्रभु वहीं से आते हैं और उन्होंने काफी बहुत बड़े विद्वान थे। न्याय शास्त्र में जो कार्य है वो नव्य न्याय के नाम से जाना जाता है। उसमें भी बहुत दुर्लभ ग्रंथ रचे गए हैं बंगाल में और उनकी पांडुलिपि उपलब्ध है, पर उस पर भी शोध कार्य हो सकते हैं। और उसके बाद फिर इस जो वेद चर्चा की कमी होने के कारण वहाँ पर व्याकरण, जो अष्टाध्यायी व्याकरण है, उसकी भी चर्चा नहीं। स्वामी विवेकानंद को अष्टाध्यायी अध्ययन करने के लिए बहुत भ्रमण करना पड़ा, लेकिन फिर भी वो उनके मन में यह इच्छा अधूरी रहेगी कि वो ठीक से नहीं पढ़ पाए। वेदाध्ययन करने के लिए उनको बंगाल से बाहर जाना पड़ा। तो यह वेदों की चर्चा को पुनर्जीवित करने के लिए एक विशेष प्रोजेक्ट लेने की आवश्यकता है, क्योंकि वेदों के माध्यम से हमारी संस्कृति जीवित है। हमारी संस्कृति का आधार, सभ्यता का आधार वेद ही है और वेदों का अध्ययन ही, हमने केवल वेदों का नाम ही सुना है और वेद और उपनिषदों का अध्ययन कम ही होता है। गीता का अध्ययन तो खूब होता है, गीता पर सैकड़ों भाष्य लिखे गए, पर वेद पर काम बहुत कम हुआ है। अब जब इतने विद्वान, इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, इतना कुछ सुविधाएं हमारे पास हैं और भारत के पास जो टैलेंट की भी कोई कमी नहीं, और उसका उपयोग हम इसमें कर सकते हैं कि वेदों का पुनरुद्धार करें। उसके लिए हमें कुछ प्रोजेक्ट स्वीकार करना चाहिए और इस प्रकार से आगे चल के वेद और वेदांग और जितने शास्त्र हैं उन पर अध्ययन को
बढ़ाना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, ताकि लोग उस पर कार्य करें। हमारे देश का जो टैलेंट है वह सब आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर और इसी में भाग रहा है, इधर की तरफ कम है। प्राचीन काल में जब ये सब नहीं था तब हमारे देश का टैलेंट पूरा का पूरा इसी में लगता था। इसीलिए हमारे देश का साहित्य इतना विशाल है, इतना समृद्ध है। उसको हमें पुनः हमारे साथ हमें अपने भीतर लाना होगा। हमारी संस्कृति को प्रदूषित होने से रोकने का एकमात्र रास्ता है यह संस्कृत। जब प्रत्येक शब्द का अपना अर्थ होता है और वह अविच्छेद है। शब्द का यदि अर्थ बदल जाता है तो उसके भाव बदल जाते हैं, और भाव बदल जाएंगे तो उसका कर्म भी बदल जाएंगे। कर्म बदलने से उसके फल बदल जाते हैं, संस्कार बदल जाते हैं, और संस्कार बदलेंगे तो संस्कृति बदल जाएगी। हम आज जानते हैं कि एक धर्म शब्द है जिसका रिलीजन अर्थ हम लोग करते हैं, और उसका कितना बड़ा दुष्प्रभाव हुआ है कि हमारे देश, हम सब उसको जानते हैं। जो भी संस्कृत जानता है तो इस बात को समझता है। बहुत ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, समय कम है, कहने को तो बहुत कुछ है, पर आज मैं बात यहीं पर अपनी समाप्त करता हूँ। और हमारे इस जो आज के श्रोता हैं उनमें बहुत से विद्वान लोग हैं। सबसे मेरा यही निवेदन है कि वेदों के पुनर्जीवित करने के लिए, पुनर्जीवन या उसका पुनः जो लोगों के सामान्य जीवन में उसका पुनः प्रसार हो, और संस्कृत का जो शब्दकोश है उनका लोगों के पास आसानी से उपलब्धता हो, इसके प्रति हम लोगों को ध्यान दे करके कुछ कार्य करना चाहिए। नमो नमः, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आपने आज इस श्रृंखला के बीज की स्थापना की, क्योंकि इस कार्यक्रम का मूल संकल्पना जो रही है वो यही है कि भाषा के, दोनों भाषाओं के अंतर संबंध के आधार पर जो आगे शोध कार्य हो सकते हैं इस पर चिंतन होना, क्योंकि केवल संस्कृत का प्रभाव है इतना तक अगर सीमित रह गए तो फिर बस उतने तक ही हम रहेंगे। लेकिन उस प्रभाव के कारण हम क्या क्या सीख सकते हैं, क्या नया डेवलपमेंट हो सकता है, ये बहुत जरूरी है। और यही चिंतन करके आज जितने व्यक्तियों को देख रहे हैं सभी लगभग नॉन संस्कृत बैकग्राउंड से हैं। महोदय को देखा जाए या फिर मंत्री महोदय को, क्योंकि वो विशेष कार्य के कारण वो नहीं सम्मिलित हो सकते थे आज, तो उन्होंने 7:15 बजे में लोकार्पण किया वहां से। आज उकील महोदय को देखें, सभी अलग अलग क्षेत्र से हैं, और इस कार्यक्रम में 7 दिन आप इसी तरह के व्यक्तित्व को देखेंगे, जैसे कि पत्रिका के जो प्रेरक के रूप में रहे हैं प्रोफेसर हिमांशु पोटा महोदय, जो कैनबरा यूनिवर्सिटी में अभी सिविल इंजीनियर प्रोफेसर हैं सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। उनकी प्रेरणा रही। 2009 में हम लोगों की मुलाकात हुई थी वहां पर IIT बॉम्बे गेस्ट हाउस में, समीर गेस्ट हाउस में हम लोगों की मुलाकात हुई थी। तो कहने का अभिप्राय हमारा ये है कि केवल संस्कृत के ही जो विद्वान हैं, केवल उनके माध्यम से वो चूंकि शास्त्र संरक्षण में तत्पर हैं, यहाँ पर कहीं भी संशय नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ जैसे अभी वकील महोदय ने कहा कि जो उसके इतर क्षेत्र के जो हैं उनको भी अगर हम आत्मसात करते हैं, अगर उन्हें इसके साथ योजित करते हैं तो बहुत कुछ नया मिल सकता है। क्योंकि जैसे मैं रहा हूँ संस्कृत का विद्यार्थी, प्रारंभ से गुरुकुल परंपरा से रहा हूँ, लेकिन ये जितना भी आप तकनीक वाला देख रहे हैं, जब मैं IIT बॉम्बे के हॉस्टल 6 में मैं रहा करता था, उस समय में मैंने सीखना शुरू किया। तो आज वेब डिजाइनिंग कहा जाए, जितना जो कार्य कर पाता हूँ टोटल वो IIT बॉम्बे की देन है। हाँ, JNU से 2005 से प्रारंभ हुआ था हमारा जो ये गतिविधि है ऑनलाइन। तो हम कहीं पर किसी को कम नहीं आंक सकते हैं। तो इस कारण से हमें है कि अवसर प्रदान किया जाए, और बहुत अच्छा हमें भी आज जानकर के खुशी हुई जो कि कुलपति महोदय जो हैं उन्होंने इस तरह प्रकल्पना रखी है जो कि अलग अलग कॉलेजेस में संस्कृत को प्रश्रय दे रहे हैं। तो ये आगे चल करके निश्चित रूप से कुछ बेहतर करेगा। तो यही कुछ संकल्पना रख करके अलग अलग फील्ड से जो लोग हैं उनसे हम इस 7 दिन में मिलेंगे, अलग अलग क्षेत्र से हैं। और यहाँ पर भी अभी भी आपके ये भारत और भारत से बाहर के भी कुछ छात्र जुड़े हुए हैं, हालांकि उनको
अन्य भाषा से थोड़ी समस्या हो रही होगी, लेकिन वो थोड़ा बहुत समझ जाते हैं इस कारण से, जो बाहर के जो जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ हमारे अभिभावक हैं, मार्गदर्शक श्रोता के रूप में आज यहाँ पर तटस्थ रूप से क्या कर रहे हैं, तो उन सभी को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूं। और उन सब से हमें हमारी यही अपेक्षा रहेगी कि जहां पर भी आप हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारे हैं जो कि प्रशासनिक जगत में हैं, और अभी मुख्य संपादक जो थे पिताजी, वो जुड़े थे इसमें, तो सब आप देख रहे हैं जो कि एक कुल मिलाकर के हम लोग चाहते हैं जो कि संस्कृत को एक नई दिशा में विश्व स्तर पर हम स्थापित करें। ये हमारा एक प्रयास अपना रहा है शुरू से, और वो चल रहा है। और हम समय का अतिक्रमण न करते हुए साक्षात मदन मोहन महोदय हैं, एते भगवान समरुन्धन्ते जब साक्षात् आगत्य अत्र ये उपस्थिताः सन्ति, तेषां कृते औपचारिक धन्यवादार्पणं भवेत्। यतोहि धन्यवाद वितरणं तु तेषां कृते भवति जे पुनः कदापि मेलनं तेषां पुरतः मा भवेत्। एते जनाः सर्वथा अस्मदीयाः एव सन्ति, तथापि औपचारिकी प्रक्रिया वर्तते, तदनुसृत्य वयं परिपालनं कुर्मः। मदन मोहन तिवारी महोदयः। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम ध्वनि श्रूयते सम्यक्तया? श्रूयते सम्यक् रूपेण। सच्चिदानंद रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। असितगिरि समं स्यात् कज्जलं सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्रमूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानाम् ईशपारं न याति। परम पुनीत पवित्र श्रावण मासस्य संस्कृत दिवसोपलक्षे विश्व संस्कृत सप्ताह पर्वणि आयोज्यमानस्य विश्व प्रतिनिधि भाषासु संस्कृतस्य वैभवम् अस्य कार्यक्रमस्य प्रथमे दिवसे येषां महनीयानां वरेण्य विदुषां सान्निध्यम् अस्माभिः अद्य प्राप्तं तेभ्यः कार्तज्ञं प्रदानम् अस्माकं परम पुनीत अवश्य करणीय कर्तव्यम् अस्ति। तदर्थम् अहं समुपस्थितोऽस्मि डॉक्टर मदन मोहन तिवारी वेद विभागीयः आचार्यः महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालयः। आदौ अहम् अस्य कार्यक्रमस्य मुख्यतिथिरूपेण तेषां व्यस्तता आसीत्, ते मन्ये तेषां अन्यत्र कुत्रचित् व्यस्तता आसीत्, अतः ते साक्षात् उपस्थिता न आसन्। तथापि अस्माकं कर्तव्यं भवति यद् अतिथीनां कार्तज्ञज्ञापनं करणीयं। तदर्थम् अहं श्रीमान गोविंद सिंह ठाकुर महोदयानां कृते हार्दं कार्तज्ञं ज्ञापयामि यत् ते स्वकीयं समयं परोक्षरूपेण अस्मभ्यं प्रदत्तम्। इमे महाभागाः माननीयाः शिक्षामन्त्रिणः सन्ति हिमाचल प्रदेश सर्वकारे। एतेषां पौनः पुण्येनाहं धन्यवादान् वितनोमि। तदनन्तरं सारस्वत अतिथिरूपेण येषां वरेण्य विदुषाम् अस्माभिः सान्निध्यं प्राप्तं ते सन्ति प्रोफेसर अम्बरीश यस विद्यार्थी महाभागा। इमे बीकानेर तकनीकी संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः सन्ति। एतेषाम् अद्य अस्माभिः उद्बोधनं प्राप्तं। तेभ्यः सारस्वत अतिथिभ्यः पौनः पुण्येन हार्दं स्वागतं वितनोमि। एवं च महोदयस्य कृते वदामि
तद्भवति नाट्यशास्त्रे आगच्छति न तज्ज्ञानं न तत्शिल्पं न सा विद्या न सा कला नासौ योगो न तत्कर्मं नाट्येऽस्मिन् न दृश्यते परं मया अद्य सारस्वत अतिथि महोदयानां कृते एवम् आचरितं न तज्ज्ञानं न तत्शिल्पं न सा विद्या न सा कला नासौ योगो न तत्कर्मं सारस्वत वक्तुः न दृश्यते। अनन्तरम् अस्य कार्यक्रमस्य संरक्षकाः प्रोफेसर विजय सीजी महोदयानां प्रति अपि स्वकीयं कार्तज्ञं ज्ञापयामि। यद्यपि इमे अस्माकम् अभिभावकरूपेण आरम्भतः अद्य पर्यन्तं स्वकीयं दायित्वं निर्वहणं करिष्यन्ति तथापि एका अनौपचारिकी प्रक्रिया भवति। अतः प्रोफेसर विजय सीजी महोदयानां प्रति अपि हार्दं स्वागतं व्याहरामि। एतस्मिन् क्रमे अस्य कार्यक्रमस्य अस्मिन् कार्यक्रमे युक्ता आसन् श्रीमान शोभनलाल वकील महोदयः। तेभ्यः अपि हार्दं स्वागतं व्याहरामि। इमे महाभागाः संस्कृत भारत्याः प्रान्त्याध्यक्षाः सन्ति अवधप्रान्तस्य। एतेषां पौनः पुण्येन हार्दं धन्यवादान् वितनोमि। इमे मन्ये कुशल अभियन्ता तो सन्ति अपि कुशल अभियन्ताः सन्ति अथ च मन्ये महान् संस्कृत प्रेमिणः संस्कृतस्य कृते सर्वदा अहर्निशं कार्यं कुर्वाणाः भवन्ति। अतः एतेषां हार्दं स्वागतं कुर्वन् कार्तज्ञं ज्ञापयामि। महोदयानाम् उद्बोधनम् आसीत् शब्दस्य उपरि तो मन्ये अस्माकम् उपनिषदि प्राप्यते द्वे एव ब्रह्मणि वेदितव्ये शब्द ब्रह्म परं च यत् शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति। तो भवतां शब्द ज्ञानं तादृशं ज्ञानम् अस्ति यत् शब्द ज्ञानेन ब्रह्म ज्ञानं भवति इति अस्माकं शास्त्रेषु पदे पदे निगदितं वर्तते। अतः भवतां पौनः पुण्येन हार्दं स्वागतं व्याहरामि। अस्य कार्यक्रमस्य सूत्रधारकाः अस्माकम् अग्रजवर्याः श्रीमन्तः विपिन झा महोदयानां कृते अपि हार्दं स्वागतं व्याहरामि। अस्माकं शास्त्रेषु कथ्यते अमन्त्रम् अक्षरं नास्ति मूलमनौषधम् अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। तो अस्य कार्यक्रमस्य सूत्रधारकाः पुनश्च योजकाः कुशलयोजकाः संयोजकाः इमे सन्ति। एतेषां कृते अपि हार्दं धन्यवादान् वितनोमि। पुनः कार्यक्रमस्य कुशलसञ्चालकाः आङ्ग्ल विविधभाषासु निष्णाताः प्रोफेसर डॉक्टर सुमन के एस महोदयानां कृते पौनः पुण्येन धन्यवादान् वितनोमि यत् ते बहु सम्यक्तया ज्ञानपूर्णरूपेण च अस्य कार्यक्रमस्य सम्यक् सञ्चालनं विहितम्। अथ च कार्यक्रमे टेक्निकल सदस्याः ये सन्ति यथा रजनी शीतल पुनः संयोजकाः सन्ति मन्ये सविता महोदया सन्ति। येषां नामानि अहं न उच्चारयामि। तेषां सर्वेषां कृते पौनः पुण्येन धन्यवादान् वितीर्य स्वकीयं वाचाम् अत्रैव विरमामि। सर्वेभ्यो पुनः नमो नमः। धन्यवादः। धन्यवाद प्रदातृभ्यो भी धन्यवादाः।
सम्प्रति शान्तिमन्त्रपुरस्सरम् अपि च अध्यक्षानुमित्या सभायाः सम्पूर्तिर्भविष्यति। तो सामूहिक शांति मंत्र भविष्यति साक्षादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमो नमः। धन्यवादाः। अनेन सहैव